فوج پر بڑھتے حملوں سے پھر دہلا بلوچستان۔ بلوچوں کی بڑھتی جبرن اغواکاری پر سراپا احتجاج متاثرہ خاندان۔ اور بیرونی قرضوں کے لیے معاشی خودمختاری داؤ پر لگا رہا ہے پاکستان۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کا، جہاں آزادی اور علیحدگی کی لہر کے سبب پاکستانی فوج کے خلاف خودکش حملے بے حد تیز ہو گئے ہیں۔ یہ سچائی تربت اور کیچ کے بعد بلوچستان کے نوشکی اور پنجگور علاقے میں پاکستانی فوج کے بیس کیمپوں پر ہوئے خوفناک خودکش حملوں سے سامنے آئی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ یہ خودکش حملے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے چین کے 4 روزہ دورے سے پہلے کیے گئے، اور ان حملوں کی ذمہ داری بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیم BLA نے تسلیم کی۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اب خود پر ہی بھاری پڑ رہی ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے میں فوجی بیس کیمپوں پر سلسلے وار ہوئے خوفناک خودکش حملوں سے سامنے آئی۔ خاص بات یہ رہی کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کے بیس کیمپوں پر ایک ہی روز نوشکی اور پنجگور میں 2 خودکش حملے کیے گئے۔ 2 فروری کی دیر رات درجنوں خودکش حملہ کے خطرناک حملوں نے بلوچستان سمیت پورے پاکستان کو دہلا کر رکھ دیا۔ لہٰذا پاکستانی فوج اور حکومت نے پوری طاقت جھونک کر 3 فروری کو بلوچستان میں خودکش حملہ سے آرمی بیس کیمپ آزاد کرانے کے دعوے کیے۔ رات دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنجور میں ایک بڑا حملہ کیا، جسے ہماری عظیم افواج نے ناکام بنا دیا، اور نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے، اور پنجور میں 6 دہشت گرد مارے گئے، اور دونوں جگہ سے پنجور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا، اور عظیم فوج نے اپنی روایات زندہ رکھیں، اور تھوڑے سے 4 یا 5 لوگ اس وقت پنجور میں بھی ان کے گھیرے میں ہیں، جن کو کہ پاک فوج شکست فاش دے گی، اور یہ ایک بڑی عظیم کامیابی ہے جو پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف حسب معمول حاصل کی ہے۔ پاکستانی فوج اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی طرح بلوچستان میں خودکش حملوں کی وجہ سے ہر طرف خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچستان کے مشیر داخلہ ضیاء لانگو نے بھی کوئٹہ میں ہنگامی پریس کانفرنس کیا، لیکن بلوچستان کے مشیر داخلہ ضیاء لانگو نے میڈیا بریفنگ میں ان حملوں کو لے کر جو اطلاعات دی اور ان حملوں میں جاں بحق ہوئے فوجی اہلکاروں اور خودکش حملہ کی جو تعداد بتائی، وہ پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی اعداد و شمار سے مختلف رہی۔ نوشکی میں 12 FCC کے جوان ابھی تک جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور 5 اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور پنجگور میں جو ہے 11 FCC کے جوان زخمی اور 7 شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے کچھ ایسے لوگ، ایسے نوجوانوں کو سیاست کی نظر چڑھا کر، ان کو بینٹ چڑھا کر دہشت گردی کے راستے پہ لایا گیا ہے۔ وہ ہمارے نوجوان ہیں، وہ کبھی افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کر رہے تھے دہشت گردی، ابھی وہ یہاں آ کر اپنے ملک میں ہی ایک دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ تو اس کی جو ہے تمام تر میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری وہ دہشت گرد تنظیمیں اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر ہے۔ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے 20 سال اس میں کی حالت جنگ چل رہی ہے ان کے خلاف، وہ وقتاً فوقتاً ان کو کبھی افغانستان سے سپورٹ ملتی ہے، وہ آتے جاتے ہیں۔ پاکستانی فوج کی متوازی حکومت والے بلوچستان صوبے میں ہی نہیں بلکہ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور تک خوفناک بم دھماکے اور خودکش حملے ہو چکے ہیں، اور ان حملوں کی ذمہ داری بلوچستان کی علیحدگی پسند ممنوعہ تنظیم BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی تسلیم کر چکی ہے۔ تاہم پاکستانی فوج اور حکومت ان حملوں کے لیے حسب دستور افغانستان میں موجود TTP اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوششیں کرتی آ رہی ہیں۔
लेकिन BLA समेत बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातें इन हमलों की असल वजह सीपेक व ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों की आड़ में बलोचों को सरजमीन और कुदरती वसाइल की लूट खसूट बता रही है, क्योंकि इस लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठाने पर पाकिस्तानी फौज पर हावी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशों पर अमल पैरा है। सीपेक से हमें मिला क्या है? सीपेक से हमें मोटरवा नहीं मिला, हमें ऑरेंज ट्रेन नहीं मिला, हमें ग्रीन बस नहीं मिला, हमें नौकरियां नहीं मिली, हमें रोजगार नहीं मिला, हमें फैक्ट्री नहीं मिला। सीपेक से हमें जनाजे मिले, मस्जिदें मिली हैं, नौजवानों की लाशें, माओ की लाशें, बच्चों की लाशें, और हॉस्पिटल भी नहीं मिले, तालीमी इदारे भी नहीं मिले। हमें क्या मिले? चेक पोस्टें मिले। हम समझ रहे थे सीपेक से हमें तालीमी इदारे मिलेंगे, हम समझ रहे थे सीपेक से हमें हॉस्पिटल मिलेंगे, हम समझ रहे थे हमें तालीमी इदारे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलेंगे। मिला तो क्या मिला? चेक पोस्ट मिला। मेरे सूबे में आपने कभी 10 लाशों की, मैं उस 8 अगस्त वाले वाक़े की बात नहीं कर रहा, मैं इसके अलावा की बात कर रहा हूं, रीसेंट बात कर रहा हूं। कभी यहां लाहौर में आपने 10 डेड बॉडीज की बरियल इकट्ठी देखी है? अल्लाह पाक रहम करे, कभी आप दोस्तों ने कभी 10 लोगों को इकट्ठे तदफीन करते देखा है, और वो भी एदी के जरिए, और वो भी कि उसका कोई वारिस मौजूद ना हो? बलूचिस्तान में चाइनीज मंसूबे सीपेक और ग्वादर पोर्ट के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार सिर्फ BLA जैसी अलहदगी पसंद तंजीमें ही नहीं कर रही। ये सच्चाई ग्वादर के मकामी बाशिंदों की जानिब से हाल ही में 1 महीने से ज्यादा अरसे तक दिए गए एहतजाजी धरने और शदीद मुजाहिरों से सामने आ चुकी है। काबिले गौर बात यह है कि बलूचिस्तान के नौशकी और पंजगुर शहरों में आर्मी बेस कैंपों पर BLA की जानिब से दोनों खुदकुश हमले ठीक उस वक्त किए गए जब दूसरे रोज पाकिस्तानी फौज की कठपुतली वजीर आजम इमरान खान चीन के 4 रोजा दौरे पर जाने वाले थे, और वजीर आजम इमरान खान के चीन के दौरे से कब्ल पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने भी बलूचिस्तान का हंगामी दौरा किया, और बलूचिस्तान के तुर्बत और केच इलाकों में हुए खुदकुश हमलों में 10 फौजी एहलकारों की हलाकत से हौसला पस्त पाकिस्तानी फौज के जवानों की हौसला अफजाई करने का दिखावा किया था। बलूचिस्तान में बढ़ते खुदकुश हमलों की असल वजह पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोच कारकुनों की जबरन अगवाकारी और मावराए अदालत कत्ल मानी जा रही है। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब बैरूनी मुल्कों तक से बलोच कारकुनों को अगवा कर रही हैं। यही वजह है कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स और बलोच यकजहती कमेटी जैसे इंसानी हुकूक के इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। जिस उम्र में हाथों में कलम और पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में इस नन्ही सी बच्ची की बदनसीबी ही है कि वो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों से गुहार लगा रही है। जी हां, हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में प्रेस क्लब के बाहर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की कॉल पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, और कराची में इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही 27 जनवरी 2022 को UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की जानिब से अब्दुल हफीज ज़ेहरी बलोच को जबरन अगवा किया जाना। यही वजह रही
کہ کراچی میں سراپا احتجاج عبدالحفیظ زہری بلوچ کے لواحقین اور بلوچستان کے سماجی و انسانی حقوق کارکنوں نے متحدہ عرب امارات یعنی UAE کی حکومت سے پاکستان کے بہکاوے میں نہ آ کر عبدالحفیظ زہری سمیت دیگر لاپتہ بلوچوں کو بازیاب کرنے کی گزارش کی۔ اگر اس کے خلاف کوئی جرائم تھے یا الزامات تھے تو UAE کو چاہیے تھا کہ وہ خود اس کی تفتیش کرتی۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کسی اور ملک کا ٹول بن جائیں، اور وہ بھی ایک ایسی ریاست، پاکستان جیسی ریاست جہاں پر کوئی انصاف نہیں، جہاں پر کوئی قانون نہیں، تو ایسی ریاست کے ٹول بن کے آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ نے راشد حسین کو پاکستان کے حوالے کر کے کیا حاصل کیا؟ یا آج جو ہے عبدالحفیظ کو آپ کسی اور کے اشارے پر، کسی ریاست کے اشارے پر، پاکستان کی ایجنسیوں کے اشارے پر اگر گرفتار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ نہ صرف جو ہے اس ملک کی جو ہے تاریخ اور روایت کے خلاف ہے، بلکہ یہ انسانیت کے خلاف بھی ہے۔ قابل غور ہے کہ UAE میں اغوا کیے گئے عبدالحفیظ زہری بلوچستان کے معروف سماجی رہنما راشد حسین بلوچ کے چچیرے بھائی ہیں، جنہیں 26 دسمبر 2018 کو UAE سے ہی اغوا کر کے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے حوالے کیا گیا تھا۔ لہذا گزشتہ 3 برسوں سے لاپتہ راشد حسین بلوچ کی بازیابی کے لیے بھی ان کے لواحقین پاکستان میں عدل و انصاف کی گہار لگا رہے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتے ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے پر راشد حسین اور عبدالحفیظ زہری بلوچ ہی نہیں بلکہ حفیظ زہری کے چھوٹے بھائی مزید زہری اور ان کے والد حاجی رمضان زہری کو ہزاروں لاپتہ بلوچوں کی طرح شہید کیا جا چکا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عبدالحفیظ بلوچ کی فیملی سے، خاندان سے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس خاندان کے نہ کسی بچے کو کبھی چھوڑا گیا ہے، نہ کسی نوجوان کو، نہ کسی بزرگ کماش کو چھوڑا گیا ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI وہ ظالمانہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں بسنے والی محکوم بلوچ اور پشتون قوموں کے بے قصور افراد کو جبراً اغوا کر کے لاپتہ کرنے پر فخر محسوس کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 7 دہائیوں سے مسلسل بڑھتے ریاستی ظلم و زیادتیوں کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے۔ لاپتہ بلوچوں کے لیے آواز اٹھانے والی انسانی حقوق ادارے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹپتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں جبراً اغوا کاری کے واقعات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ہم نے صوبائی گورنمنٹ کو اب تک 800 کے قریب لاپتہ افراد کے کیسز فراہم کیے ہیں، جن میں سے تقریباً 450 کے قریب لوگ بازیاب ہوئے ہیں، لیکن اس لسٹ میں جو کئی سالوں سے لاپتہ افراد ہے جن کی ہم سے گورنمنٹ کے سطح پر وعدہ بھی کیا گیا کہ جو پرانے لاپتہ افراد ہے ان کیسز پہ زیادہ کام کیا جائے گا اور ان کے خاندان کو معلومات فراہم کی جائے گی، لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ نے ان 3 سالوں میں ہمیں کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں ظلم و جبر کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کی جمہوریت پسند سیاسی اور قوم پرست پارٹیوں کے بیشتر لیڈران و سیاسی کارکنان بیرونی ممالک میں ہجرت کر چکے ہیں اور اب وہ بیرونی ملکوں میں ضلع وطنی کی زندگی بسر کرتے ہوئے بلوچستان میں بڑھتے پاکستانی مظالم کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے اب بیرونی ملکوں میں بلوچستان کے لیڈروں اور سیاسی و انسانی حقوق کارکنوں کو جبراً اغوا کر کے لاپتہ کیے جانے کے واقعات میں
होशरुबा इजाफा हो गया है। ये सच्चाई स्वीडन से बलूचिस्तान टाइम्स नामी अखबार निकालने वाले जिला वतन बलोच सहाफी साजिद हुसैन और मारूफा बलोच कारकुन करीमा बलोच की कनाडा के टोरंटो शहर में पुरस्कार हलाकतों से सामने आ चुकी है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी की सौदेबाजी पर बरसे अपोजिशन लीडरान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के सिंध सूबे के घोटकी जिले में अक़लियती हिंदू फिरके कारोबारी सतनलाल दीवान को मंसूबाबंद हमले में हलाक कर दिया गया। नामालूम हमलावरों की जानिब से हिंदू कारोबारी और समाजी रहनुमा सतनलाल दीवान पर उस वक्त गोलियां बरसाई गईं जब वो अपने रिश्तेदार के हमराह जलसे में तकरीर करके लौट रहे थे। लिहाजा इस हमले में मकतूल सतनलाल का रिश्तेदार भी शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जो हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। मुतासिरा हिंदू खानदान के मुताबिक सतनलाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में अक्सरियती तबके के मकामी इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां मिलने की इत्तला दी थी, क्योंकि उन्हें धमकियां दी गईं कि जीना चाहते हो तो भारत चले जाओ। लेकिन इन धमकियों की पुलिस में शिकायत करने के बावजूद मकतूल सतनलाल की कोई मदद नहीं की गई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को अपने ओहदे से रिटायर हो गए। इस मौके पर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक्किदा अल-विदाइया तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि उन्होंने 2 साल 1 महीने की मुद्दत में बतौर चीफ जस्टिस गैर जानिबदाराना फैसले देने की हर मुमकिन कोशिश की। इसका वाहिद मकसद पाकिस्तान में अदालते उज़्मा के वक़ार और लोगों के एतमाद को बढ़ावा देना रहा। इसके बाद पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सदर आरिफ अलवी से हलफ लिया। पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बने उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। इससे पाकिस्तान में अदालती निज़ाम की शबीह बिगाड़ने की साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की मजहबी इंतहा पसंद तंजीम टीएलपी के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी ने निकाह कर लिया। टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बड़े साहिबजादे मौलाना साद हुसैन रिजवी ने अपने मामू जान की बेटी से पंजाब सूबे के अटक जिले में बेहद सादगी के साथ निकाह किया। काबिल गौर बात ये रही कि मौलाना साद हुसैन रिजवी का निकाह पाकिस्तान के उन्हीं मारूफ मजहबी उलेमा मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पढ़ाया, जिन्होंने चंद महीने पहले टीएलपी और इमरान खान की हुकूमत के माबैन खुफिया मुआहदा करवाया। इस खुफिया मुआहदे के बाद ही पंजाब पुलिस के कई अहलकारों को हलाक करने वाली टीएलपी से पाबंदी हटाई गई और मौलाना साद हुसैन रिजवी को लाहौर जेल से रिहा किया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमत में तमाम प्राइवेट कॉलेजेस में को एजुकेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। PHEC यानी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से सूबे के तमाम प्राइवेट कॉलेजेस को ये फरमान जारी किया गया है कि अब वो BA ऑनर्स के तुलबा तालिबात को एक साथ नहीं पढ़ा सकेंगे। इस हुक्म की खिलाफवर्जी करने पर प्राइवेट कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए अब पंजाब सूबे के सभी निजी स्कूलों को 28 फरवरी तक कमीशन में नया एफिडेविट जमा कराने की हिदायत दी गई है, लेकिन पंजाब सूबे के महकमा तालीम की जानिब से वेबसाइट पर दी गई इस हिदायत को जाली बताया। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मुलाजमीन की जानिब से अपने जायज मुतालबात की हुकूमती अनदेखी के खिलाफ गुज़श्ता 2 महीनों से जारी एहतजाजी हड़ताल मजीद शदीद इख्तियार करती जा रही है। तशवीशनाक बात यह है कि यंग डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स स्टाफ एसोसिएशन ने क्वेटा समेत पूरे बलोचिस्तान सूबे में इंसदादे पोलियो और डेंगू मलेरिया प्रोग्राम्स के अलावा कोरोना वैक्सीन सेंटर समेत दीगर शहरों में मौजूद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी काम बंद कर दिया है। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला मरीजों और उनके रिश्तेदारों में गम गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों की जानिब से बढ़ती सियासी हंगामा आराई का। यूं तो पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत की तानाशाही पॉलिसियों और इंतकामी कार्रवाइयों को लेकर शुरू से ही सरापा एहतजाज हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने पार्लियामेंट और सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के हवाले करने के लिए आईनी तरमीम करके बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। पूरे
पाकिस्तान पर हावी सबसे ताकतवर आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने जिस कठपुतली वजीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को मुसल्लत किया हो और उसकी मुसलसल सरपरस्ती की हो, उस इमरान खान की हुकूमत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बाद ऐवाने बाला सीनेट में मंजर-ए-आम पर आई, क्योंकि सीनेट में अपोजिशन जमातों के अराकीन की अक्सरियत के बावजूद इमरान खान हुकूमत आईनी तकाज़ों की धज्जियां उड़ाते हुए ड्रामेटिक अंदाज में मिनी बजट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 मंजूर कराने में कामयाब हो गई। Those who are in favor of the motion में से आए, those against the motion में से नो, जो उसके अगेंस्ट हैं वो अपनी शिस्तों पे खड़े हो जाएं ताकि काउंट करें जी। अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43, तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। 3.5 साल में एक भी मोशन या बिल पर अपोजिशन कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। 3.5 साल में कोई बिल मोशन ऐसा नहीं है जिसमें अपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दी हो। और ये बड़ा शोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे, और अब ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें, आप इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं को भी नाराज करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये ना समझें, आप बिल्कुल ये ना समझें कि कौम आपकी सोचों से वाकिफ नहीं है। जमहूरी तरीका यह है कि आप असेंबलियों में आकर अकद का इजहार करें। अगर गवर्नमेंट मूव ही नहीं करे मैं क्या कर सकता हूं जी। अपने नंबर्स पूरे करने के लिए ये हाउस को इंतजार में इन्होंने रखा हुआ है। अपने माजरत के साथ आपसे एक अच्छा ताल्लुक भी है, लेकिन चेयर फैसिलिटेट करती हुई नजर आ रही है। कोई चेयर फैसिलिटेट नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट अगर अपना बिल ले ही नहीं करे मैं क्या कर सकता हूं मुस्तफा? आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जब एजेंडा न दे तो मैं एजेंडे पे रख ही नहीं सकता हूं। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न फॉर 30 मिनट्स। जरा गौर फरमाएं, ऑपोजिशन पार्टी के सीनेटर और सीनेट चेयरमैन के दरमियान गुफ्तगू पर। जी हां, बेहद सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बगैर किसी एजेंडे के आधी रात को सीनेट के हंगामी इजलास के नोटिस भेजे गए। ताहम सीनेट में ऑपोजिशन जमातों के अराकीन की ज्यादा तादाद होने पर वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ऐवान छोड़कर चले गए। लिहाजा चेयरमैन सादिक संजरानी ने सीनेट इजलास मौखर भी कर दिया। खुदा के लिए ये इस अमान का एहतराम करें, आप भी इसका तकद्दुस पामाल ना करें जो इस वक्त हो रहा है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में पार्लिमानी हिस्ट्री में ये होते हुए नहीं देखा। अगर वजीर साहब नहीं आए तो आप इस मसले को इस हाउस को एडजर्न करें। आपके पास कोई और नहीं है जी, मेरे बात नहीं सुने सर। और इस बिल को 1 महीने तक आप ऑर्डर ऑफ द डे में नहीं लेकर आएंगे, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। ये आप रूलिंग दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रूलिंग दे कि ये जो लेजिस्लेटिव बिल है 1 महीने तक ऑर्डर ऑफ द डे पर नहीं आएगा। आपने इस हाउस को मजाक बना लिया, बिल्कुल मजाक बना लिया। दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, इसको 1 महीने के लिए एडजर्न करें और इस हाउस को अभी आप फौरन एडजर्न कर दे। नो मोर स्पीचेस, नो मोर डिस्कशंस। आज हम एक तरमीमी बिल पास नहीं करने जा रहे, बल्कि मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान की मईशत को पाबंद करने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत की जो आज़ादी और खुद मुख्तारी है उस पर हम ज़रबे अज़ब लगा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हुकूमत शिकस्त खा चुकी है, वो इसका एतराफ करे। चोरी और सीना जोरी इमरान खान की हुकूमत का तानाशाही हर बा रहा है।
इस पर सीनेट के कई ऑपोजिशन जमातों के लीडरान इजलास छोड़कर चले गए। लिहाजा आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से फोन पर हरी झंडी मिलने पर वजीर खजाना शौकत तरीन ने सीनेट में आकर आनन फानन में बिल मंजूर करवा लिया। सीनेट चेयरमैन के जानिबदाराना रवैये पर ऑपोजिशन जमातों के सीनेटर्स इजलास का बॉयकॉट करके चले गए। पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन पार्लिमानी प्रोसीजर और बदतरीन जो इस वक्त धांधली हुई है सेनेट में, जिस तरह बुल बिल्डोज हुआ है, हाउस 2 दफा मुलतवी हुआ, 1 अरब के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नीलाम की गई है। आज काबिले गौर बात यह है कि पाकिस्तानी सीनेट के अराकीन की कुल तादाद 99 है। इनमें ऑपोजिशन जमातों के 57 और हुक्मरान व इत्तेहादी जमातों के सिर्फ 42 सीनेटर्स हैं। इतने बड़े फर्क के बावजूद आइन और इखलाकियत को बालाए ताक रखकर ऑपोजिशन जमातों को शिकस्त दे दी गई। यही वजह रही कि सीनेट में ऑपोजिशन जमातों के अराकीन ने आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की धमकियों और धांधलियों के जरिए मंजूर करदा हुकूमती बिलों को नेशनल असेंबली की पूरी तरह मुस्तरद कर दिया और इमरान खान हुकूमत के तानाशाही रवैये और जाली कानून साजी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान किया। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। Zalan kotvan vesiye yarasvan dalailati yarasvan yar do nar kot zalan